Sus yokun. Yokun olsun yokun. Yokun olsun. Var mı? Var mı? Vadım şun. Vadım şun. Keşun parvay. Şuna ami tundi khatri yok. Kya parvay şun. Kya masla şun. Keşun parvay. اور انتقال کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کے پاس پیسہ نہیں تھا کہ یہ اپنی بیوی کا علاج کر سکیں، اور اس پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اور اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے ابھی مشکلات کیا کھڑا ہوئی ہے۔ اس کے 5 بچے جو بالکل معصوم ہیں، جو اپنی تعلیم کو وہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتے ہیں، وجہ صرف یہ غربت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج کے اس پروگرام میں تمام اپنے ناظرین، جے کے لائیو کے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کو بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم جے کے لائیو کی ٹیم جہاں پہ موجود ہے وہ قریباً سری نگر سے 100 کلومیٹر دور کوکرناگ کے وائلو علاقے کے تراجن میں موجود ہے، جہاں پہ آج پھر سے آپ لوگوں کو انسانیت پکار رہی ہے۔ ہمارے پیچھے آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہو کہ 5 بچے موجود ہیں، جن کی 3 ماہ قبل ان کی جو ماں تھی وہ ان کو چھوڑ کر اس دنیا میں چھوڑ کر چلی گئی، جس کے بعد ان بچوں پہ مشکلاتوں کا ایک سیلاب امڑ پڑا۔ آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو سب سے بڑی بچی ہے وہ تبسم ہمارے ساتھ موجود ہے، جو محض 5 سال کی عمر کی ہے، یعنی کہ جب اس کا داخلہ سکول میں ہوا تو وہ اول جماعت میں یعنی فرسٹ کلاس میں اس کو داخلہ کیا گیا، لیکن جب اس کی ماں اس دنیا سے رخصت چلی گئی تو اس کے کاندھوں پہ ان کے بھائیوں اور بہنوں کی ذمہ داری آ گئی، جس اس کی زندگی میں مشکلاتوں کا ڈھیر سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہم تبسم سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ یہ ہم سے بات نہیں کر پا رہی ہے، یہ کافی شوق میں ہے، کیونکہ مشکلاتوں کا سیلاب ان کی زندگی میں آیا ہوا ہے، ان کی کاندھوں پہ اتنی ذمہ داریاں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ وہ کافی مشکل ہے۔ میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ دیکھیے کہ کتنے مشکلات، کتنی ذمہ داریاں اس چھوٹی معصوم بچی پہ ہے، جو کہ میرے خیال سے کسی عام انسان کے لیے بھی برداشت سے باہر ہو سکتے ہیں۔ تبسم کون سا کیا دلیل گئی تہذ ممی سے؟ اچھا بات ژےٚ ما یاد یِوان پننہِ ممی ہٕنٛز؟ ژٕ ما کلمہٕ تھاو اوٚن کُن کینٛہہ چھُنہٕ پرواے۔ ژٕ وٕچھ یوکُن یوکُن اوس یوکُن اوس واد ما ژٕ واد ما یُس وَدُن چھُنہٕ وَدُن چھُنہٕ کینٛہہ چھُنہٕ پرواے، أسۍ چھِ نا اَمے تُہنٛدی خٲطرٕ یوت، کینٛہہ پرواے چھُنہٕ، کانٛہہ مسلہٕ چھُنہٕ، کینٛہہ چھُنہٕ پرواے، یہِ چھِ آسان اللہ تعالیٰ سٕنٛز مرضی، تَتھ منٛز چھِ یِم چیٖز گژھان۔ ژٕ مہٕ تھاو تَوَے ہیوٚکُن، کینٛہہ چھُنہٕ پرواے، وَدُن چھُنہٕ ژٕ مہٕ واد ؤسۍ، یہِ چھِ آج جب جے کے لائیو ٹیم کو اطلاع ملی کہ سری نگر سے قریب 100 کلومیٹر کی دوری جنوبی کشمیر کے مشہور سیاحتی مقام کوکرناگ کے بالائی علاقے تراجن میں انسانیت ایک ٹوٹے کمرے میں دم توڑ رہی ہے، تو جے کے لائیو ٹیم فوری طور پر اس مقام پر پہنچی اور ان بچوں سے ملی۔ دور سے دکھائی دے رہے مکان کی حالت اس پریوار کے مشکلوں کا داستان بیان کر رہا تھا۔ مکان کے صحن میں 5 ننھی زندگیاں ایک دوسرے کو دلاسا دینے میں مصروف نظر آئی۔ ان ننھے ستاروں میں سب سے بڑے ستارہ محض 5 سال کا ہے، جس کا نام تبسم جان ہے۔ ان معصوم زندگیوں کے والد فاروق احمد ملک اگرچہ پیشے سے ایک مزدور ہے، لیکن اپنی بیوی کے گزر جانے کے بعد ان کا کام پہ جانا بھی مشکل ہو گیا۔ پہلے سے ہی بدترین مالی حالت کی وجہ سے یہ پریوار
मुसीबतों के बोझ तले दब गया है। ईद पे जब हर कोई अपने बच्चों के लिए मुख्तलिफ किस्म के तोहफे खरीदने में मसरूफ थे, तब तबस्सुम के वालिद अपने बच्चों को खिलाने के लिए 2 किलो चावल का इंतजाम कर रहे थे। मकान की हालत इस कदर बदतरीन है कि वो कभी भी जमीन बोझ हो सकता है, क्योंकि मकान बहुत पुराना है जिसमें बड़ी बड़ी दरारें हो चुकी है। इस मकान में ये मासूम जिंदगियां हर पल खतरे के निशाने पर रह रही है। अगरचे तबस्सुम का दाखिला सरकारी स्कूल में अव्वल जमात में किया गया था, ताहम घर में अच्छी माली हालत और मां के गुजर जाने के बाद उसकी पढ़ाई छूट गई। पढ़ाई के साथ साथ तबस्सुम के वो सारे सपने चकनाचूर हो गए जो उसने स्कूल जाते हुए देखे थे। नाम फारूक अहमद मलिक। बस अस योर मान जंगल इलाकस मज वारिया दूर मे हस खानदारी बेमार मे पोंसे कह सह गुजरे वह बह अपील करान ये बायन अगर तम तक खुदा सद वत कह मदद तुम तक मे कह मदद कर मे वनकस नाकाम आयाल बह हेकान मान कहें कर मकान यह 2 शरीकन वनकन मे ये कमरा मे ये फिलहाल जित मे मान छपत बात कहें वनकस मे नाकाम आयाल ये बह हेकान दोस्त नीर कुछ अंदस मे वनकस मान 8 वरिश बची ये पालन वनकस 4 पास कोर्मुत ये बनान वक्त बनान पान ना पास जेके लाइव अपने तमाम नाजरीन और अहले इंसानियत से गुजारिश करती है कि जिस तरह आप लोगों ने पहले भी इंसानियत को जिंदा रखने में हमारा साथ दिया है, आज फिर से हम सबको इंसान होने का सबूत देना होगा और इन बच्चों को फिर से स्कूल भेजने में, इनके ख्वाबों को शर्मंद ताबीर करने में, इनके मकान को बनाने में अपना अहम रोल निभाए। स्क्रीन पे दिए गए अकाउंट नंबर तबस्सुम के वालिद फारूक अहमद का है। आओ हम सब मिलकर दिल खोलकर इनकी मदद करें। जेके लाइव के लिए शाह इशफाक और आरिफ अहमद के साथ मैं रऊफ वानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप इस बलाई इलाके में आए और यहाँ पे जाके आप एक कवरेज दे रहे हैं, पूरी इंसानियत को आप ललकार रहे हैं कि देखिए इस वक्त भी इंसानियत की कितनी ज़रूरत है इन लोगों को जो इस वक्त बहुत ही बड़े मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं, जबकि लॉकडाउन चल रहा है और पूरी तरह से अगस्त से लेकर आज तक जो कश्मीर के अंदर लॉकडाउन हो रहा है, तो इस वक्त ये लोग किस तरीके से गुनागून मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। तो इसी ज़िम्मन में आप इस वक्त इतनी सख्त गर्मी के अंदर और इतनी सख्त हालात के अंदर आप यहाँ पे आए, अपने जान के साथ बाजी खेल के, जहाँ पे रेड जोन एरिया है वहाँ पे आप आए, तो वहाँ पे आप एक कवरेज दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कवरेज के हवाले से मैं बात करूँगा, ये जो रिमोट एरिया है, बहुत ही रिमोट एरिया है, इसके आगे कहीं बस्ती नहीं है। अगर आप अपना कैमरा का लेंस से पहाड़ी की तरफ घुमाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ से पता चलता है कि आप इस वक्त कश्मीर के आखिरी सरहद पे हैं, जहाँ से आगे कोई भी बस्ती नहीं है, सिर्फ जंगल ही जंगल आपको आगे दिखेगा। और यहाँ पे आप कवरेज के लिए आए हैं और कवरेज का मकसद इतना ही है कि आप इंसानियत को ललकार रहे हैं कि इंसानियत एक बार फिर से जाग जाए कि इंसानियत की लोगों को ज़रूरत है, अच्छे लोगों की ज़रूरत है। वो लोग इन मासूमों की खदमत के लिए आए, इन मासूमों की मदद के लिए आए। इस वक्त एक जो स्टोरी आप तैयार कर रहे हैं, फारूक अहमद मलिक जो इस ताजी इलाके से ताल्लुक़ रखता है, जिसकी अहलिया का कुछ दिन पहले इंतकाल हो गया, और इंतकाल की वजह क्या हुई, इसके पास पैसा नहीं था कि ये अपनी बीवी का इलाज कर सकें, और उस पैसा न होने की वजह से और इसकी बीवी का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से अभी मुश्किलात क्या खड़ा हुई है। इसके 5 बच्चे जो बिल्कुल मासूम हैं, जो अपनी तालीम को वो तालीम नहीं हासिल कर सकते हैं, वजह सिर्फ ये गुर्बत है। तो इंसानियत
को आप ललकार रहे हैं कि इनकी मदद के लिए आए, इनके लिए तालीम का इंतज़ाम करें, जो इंसानियत का तकाजा है कि इंसानियत इसीलिए कि हम एक दूसरे की मदद करें, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थी करोबियाँ। तो सिर्फ इंसानियत के लिए, इंसानियत को तकाजा रखकर कि हम एक दूसरे की मदद करें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आखिरत में मदद करें। और आपके चैनल के माध्यम से और मैं इन तमाम अहले बरादरी को, तमाम मुसलमान को ये अपील करता हूँ कि इसकी मदद के लिए आए ताकि ये अपने बच्चों को तालीम भी दे सके और अपने बच्चों के लिए तामीरी काम किया कर सके। एक कमरे के अंदर 5 बच्चे और उनके वालिद साहब, और जिनको खाने पीने की कोई चीज़, कोई अशिया मौजूद नहीं है, बस सिर्फ ये चंद लोग जो है इनकी मदद के लिए आए। और आपका इसमें कवरेज देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से मैं यही कहूँगा कि आप बड़े महान आदमी हैं जो इतने दूर दराज इलाके में कवरेज देने के लिए आए और इस लॉकडाउन की हालात के अंदर आप आए और अपनी जान के साथ खेल के आए कि हमें बीमारी का कोई भी डर नहीं है, बस हम चाहते हैं कि हमसे इंसानियत की खैर हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस कोशिश को कबूल फरमाए। व आखिर दोनों अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।